जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। 2 to 3 ਟਾਈਮਸ ਬਸ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬਾਕੀ 2 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਰੋਈ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਹਟੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मंगलवार का सत्संग। आज तारीख 9 है, 9 दिसंबर 2025। गुरु जी की कृपा से आज मेरा बेटा बाल बाल बचा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहाँ बाहर चिड़िया को दाना डालने गया था और कभी को रोटी। अचानक एक आदमी बात करता करता उसकी बाइक के पास से टकराया, ऐसे टकराया कि वो बिल्कुल गिर गया बेटा मेरा। और गुरु जी की कृपा से उसे कहीं चोट नहीं आई। थोड़ा सा हाँ बॉडी पेन तो हो रहा है, लेकिन शुक्राना गुरु जी, उसको चोट न लगने का, उसे बचाने का। अनहोनी न कोई बड़ी भी हो सकती थी, पीछे से ट्रैफिक आता, कुछ अचानक हो जाता, बड़ी सड़क पे हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और आज मेरे पति माँ जो आजकल ड्रिंक करने लग गए हैं फिर से, उनकी भी चेस्ट में दर्द हो रहा था, मैंने उनको पेन किलर दिया। गुरुपा शुक्राना उन दोनों की जान रखने का, उन पे अपनी कृपा दृष्टि दिखाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जिस तरह से हमारी रक्षा कर रहे हो ऐसे सब एक कृपा करो गुरुपा। आप कहते हो ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है तेरे पे मारन क्रिया करी जा रही। अगर आप ना हो तो गुरुपा हमारा तो बुरा ही हाल हो जाए। शुक्राना गुरु जी। और उन लोगों को या तो आप पलट के उनको जवाब दो, उनके साथ जब ऐसा होगा तो उन्हें पता चलेगा, या उन्हें बुद्धि बख्शो गुरुपा की वो ऐसी हरकतें ना करें। वरना मैं तो सारी जिंदगी यही परेशानियां बर्दाश्त कर करके थक गई हूँ गुरुपा। कोई तो इलाज करो इन लोगों को, सद्बुद्धि दो उनको जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं। हर वक्त आपने कहा है कि तेरे घर का ही कोई बंदा है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरुपा। वो तो मुझे मालूम है, मेरी देवरानी और जेठानी है और उसकी बहू है, और मेरा देवर और जेठ भी सारे हमें भगाने के चक्कर में है। गुरुपा हम पे कृपा करो, और जैसे अभी हमारी जान बचाई हुई है से बचाते रहो, लेकिन गुरुपा कोई तो इलाज, पर्टिकुलर इलाज करवाओ गुरुपा, इन लोगों की बुद्धि ठीक करो। और एक बार इनके साथ ऐसा हो तो इन्हें पता चले कि दूसरों के साथ करने का क्या नतीजा होता है। अब मैं कहती हूँ गुरुपा कि अब इन्हें बख्शो नहीं, अब इन पे उल्टा वार करो बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अंकल हमारा बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना जी। जय मेरे शिव गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਦੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, आज तेरी हर अरदास हर मन की अरदास पूरी होने वाली है। तुम मेरी
तू मेरी ढेरों कृपा पाने वाली हो। तेरा वक्त बदलने वाला है, मुस्कुराने का समय आने वाला है। अपने परिवार वालों को भी भेज, और ताकि वे भी देख सके कि गुरुपा कैसे अपना रंग दिखाते हैं 2026 में। घर आंगन में समृद्धि और सुख का उजाला होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इन ब्लेस करने वास्ते। जय जय गुरु जी मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जसपन अंकल ਜੋਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਡਰਿੰਕ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। गुरु जी कृपा करना, अनंतम अनंतम कृपा करना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ब्लैस करते रहना। जय मेरे गुरु पा। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। बेटी ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। बड़ी बेटी बारे रोज अरदास लानी होगी, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सुबह वॉक कर रही थी। वॉक करते हुए मुझे एक छिपकली बहुत बुरी तरीके से मरी हुई दिखी। मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। मैंने मंत्र जाप किया। संगत जी, गुरु जी के यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहे थे, बेटी तेरे पति अंकल पर कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, बेटे अंकल पर भी खतरा है। उस असहाय जीव ने हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी, मेरी आपसे विनती है, उस जीव को अपने चरणों में स्थान देना, मोक्ष प्रदान करना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, सदैव रक्षा करने के लिए। आप किस किस रूप में आकर रक्षा करते हैं पता भी नहीं चलता। हमेशा हमें अपनी छत्र छाया में रखना, कोई गलत कर्म नहीं हो हमसे, निंदा चुगली से भी बचा के रखना। मैं अपने माड़े कर्मों की भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। लव यू गुरु पर। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन मंगलवार है और समय हो रहा है 4:55 और जो ग्रुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। ग्रुपा आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
ग्रुपा का मैसेज आया था, तेरे किचन में कुछ ऐसा सामान रखा है जिसकी वजह से तेरे घर में नेगेटिविटी है, उस सामान को निकाल कर घर से बाहर कर दे और तेरे पति अंकल जिसके साथ मिलकर धोखा दे रहे हैं वो सब इस सत्संग के माध्यम से तुझे बता रहा हूँ। तो शुक्राना ग्रुपा, करोड़ों बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और ग्रुपा मैंने अभी तक सत्संग सुना नहीं है, अभी सुन रही हूँ, तो आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो सत्संग सुनवा के हर परेशानी का समाधान करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, और एक मैसेज था, कुड़िए तेरे घर में ये लाल धब्बे मुझे नज़र आ रहे हैं जो शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। तेरे मुंडे पर अकाल मृत्यु का कष्ट तेरे 5 मिनट सत्संग सुनते ही मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तुरंत सुन कष्ट कटवा, 1 मिनट की भी देरी ना कर। तो शुक्राना मालिक, करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, अभी तक मैंने सत्संग सुना नहीं है और ग्रुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, मैं अभी सत्संग सुनूंगी और सत्संग सुना के जो भी कष्ट है बेटे का उसको आप कटवा दीजिएगा और जो भी ऐसा कर रहा है ग्रुपा उसको तुरंत वापस कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रुपा आप जानते हैं कि दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और किसके ऊपर क्या संकट है मुझे नहीं पता है, आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जानते हैं कौन क्या कर रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरे ग्रुपा अपने घर में बैठे हुए हैं साक्षात, और उनके होते हुए ना बच्चों का बाल बाका हो सकता है, ना मेरा, ना हमारे जो ये बेजुबान जानवर है उनका, तो सभी का रक्षा हमारे गुरु पिता कर रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका तहे दिल से करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और संगत जी, एक सत्संग मैसेज आया था जिसमें आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि ये सोफ़ा में बार बार सोफ़ा में से कुछ निकालना है, तो ग्रुपा जहाँ मेरा मेरा नहीं आपका ही सरकारी क्वार्टर जहाँ पर है वो वहाँ पे सोफ़ा है, तो पता नहीं सोफ़ा में क्या है नहीं पता, और मैं साफ़ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 2-3 घंटे के समय में पूरा घर साफ़ करते करते टाइम हो ही जाता है, तो सोफ़ा में मैं कुछ भी देख भी नहीं पाई हूँ और निकाल भी नहीं पाई हूँ। तो जो कुछ है ग्रुपा उसको आप ही निकलवा दीजिएगा, और जैसे जैसे आपको काम करवाना होगा वैसे हाथ पकड़ के आप ही करवा दीजिएगा, क्या क्या निकालना है वो भी आप ही करवाइएगा मेरे मालिक, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पति अंकल तुरंत सुबह को 10-11 बजे लेके जाते हैं और 3 बजे होते होते वापस आना होता है, तो हर एक सामान ढूंढ ढूंढ के निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ग्रुपा, तो सब कुछ आप ही को करवाना है और सब कुछ आप ही की इच्छा से हो रहा है और आप ही की इच्छा से होगा मेरे मालिक। और संगत जी, मैं हर मंगलवार को मंदिर जाती हूँ, लेकिन पिछले मंगलवार को नहीं जा पाई थी, मेरे अंकल जी ने फिर वहीं बहाना मारा कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं ये मत जाओ, तो मैं नहीं जा पाई थी जैसे ग्रुपा की इच्छा, तो मैं नहीं गई थी और कुछ बोला भी नहीं, शांत ही रह गई। और आज भी मंगलवार है, मैं आज भी मंदिर जाने का इच्छा तो है लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा, तो जैसे ग्रुपा चाहेंगे वैसा ही होने वाला है। और ग्रुपा आपका तहे दिल से शुक्राना है। और संगत जी, मैं सुबह को मंदिर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, फिर आते हैं ऐसे करके 11-12 बज ही जाता है, तो सुबह में भी टाइम नहीं मिलता है, दिन भर घर में ही रहते हैं। तो मैं गुरुपा से यही विनती करना चाहूँगी कि गुरुपा प्लीज़ इस परेशानी से आप ही मुझे निकाल सकते हैं और आप ही निकालिए, क्योंकि हर वक्त बंधे रहना अच्छा नहीं लगता है, एक बंधुआ मजदूर की तरह अच्छा नहीं लगता है कि 24 घंटे घर में रहे, खुद परेशान रहते तो दूसरों को भी परेशान करते हैं, और दिन भर खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं और दूसरों को परेशान करना काम है। तो गुरुपा आप सब कुछ देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कितना बीमार है और क्या है इनके मन में, तो प्लीज़ गुरुपा इस परेशानी से मुझे मेरे गुरु पिता ही निकाल सकते हैं और मेरे गुरु पिता ही निकालेंगे। मैं सारी परेशानी अपने और अपने बच्चों की सारी परेशानी गुरुपा के श्री चरणों पे समर्पित करती हूँ। गुरुपा स्वीकार, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मेरे बच्चे हैं, तो आप हमारे परमपिता परमेश्वर और हमारे जीवन की डोर आप ही के श्री चरणों में समर्पित है, आप ही को संभालना है और आप ही संभालिएगा। और
जैसे जैसे आपको जो जो करवाना है सब काम करवाइएगा मालिक। और संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, मैं सभी से क्षमा मांगूंगी कि मुझे सत्संग करना ठीक से नहीं आता है, और अगर मेरे सत्संग के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ग्रुप आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और सभी का तहे दिल से शुक्राना है जो मेरा सत्संग सुनते हैं, और अंकल आंटी जो सत्संग शेयर कर देते हैं उन दोनों का भी बहुत सारा शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना। सभी को ग्रुप निरोगी काया ब्लेस करें, और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, और मैं भी और मेरे बच्चे भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहे ग्रुपा। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा मालिक, और आज्ञा दीजिएगा ग्रुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना तो मैं करूँगी गुरुजी का ये कि इन लॉस के बीच में रह के भी इतनी ठंड के टाइम पे ज़्यादा देर के नहीं पर थोड़ी देर के लिए से ही मैं ब्लोवर चला पा रही हूँ। इस चीज़ का शुक्राना संगत जी। जब बर्तन धुल के आती हूँ, सारा काम करके आती हूँ, थोड़ी देर के लिए चला पाती हूँ और यहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा है। वरना इससे पहले जब भी मैं ऐसा करती थी, जितनी भी ठंडियाँ गई हैं, तो बंद करा दिया जाता था और बिजली का बिल मांगा जाता था। लेकिन इस बार गुरुजी की कृपा से, गुरुजी से मैंने अरदास करी, अभी तक किसी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कुछ बोला नहीं है। तो मैं मतलब थोड़ी देर के लिए चला पाती हूँ ताकि जो हल्की ठंडक मुझे लग रही है उस पर मुझे रिलीफ मिल जाए। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज का कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो लोग नहीं कुछ कह पा रहे हैं तो आपकी कृपा से गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना ये है, रात को मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने अपना रुद्राक्ष और गुरुजी का लॉकेट ज़रूर पहना दिया था क्योंकि 3 दिन से उन पे कष्ट था। रात को संगत जी जैसे ही रात के 12 बजे के बाद 3 दिन उनके ख़त्म हुए कष्ट के, मेरी तबीयत ख़राब होना चालू हो गई। मेरे मन में गुरुजी ने टेलीपैथी करी कि अब तेरा पति सेफ़ है, उस पे जो कष्ट था वो मैंने टाल दिया है, अब तू वापस से रुद्राक्ष और मेरा लॉकेट ज़रूर पहन ले। लेकिन संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से नहीं मांगा। मेरे को लगा चलो वो मतलब एक चिंता में मैंने कहा पहने रहने दो। संगत जी, धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई। 3 बज गया संगत जी, मेरे चक्कर आ रहा था। मतलब मुझे नहीं, मतलब ऐसा लगा था मेरा दिमाग फट जाएगा, पता नहीं अजीब सा हो रहा था। संगत जी, मैंने सत्संग लगाया, मैं सत्संग सुनने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को ही गुरुजी ने मुझे सत्संग भी शेयर करवाया। फिर लेट नाइट गुरुजी ने मुझसे चाय बनवाई, चाय प्रसाद पिलवाया मुझे। शायद मुझ पे कोई कष्ट आ रहा था। जब मैं रात को सत्संग शेयर कर रही थी ना संगत जी, मुझे कोई ऐसी कोई अजीब सी लाइट परछाई सी लग रही थी, कोई मतलब बुरी एनर्जी मुझे महसूस हुई। पर वो सत्संग शेयर करने के बाद वो महसूस होना बंद हो गई। तो शुक्राना गुरुजी इस चीज़ का। तब भी मैं नहीं समझी कि मैं ये कोई बुरी शक्ति मेरे को नुकसान पहुँचाने आई है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने पॉकेट स्वरूप गुरुजी का अपने तकिए के नीचे रख लिया और मैं सत्संग सुनने लगी, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई। तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है, अभी आप तो सेफ़ हो, आप पे जो कष्ट था वो गुरुजी ने काट दिया है, जो 3 दिन भारी थे आपके, अब आप मुझे वो लॉकेट और दे दो। संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे लॉकेट और रुद्राक्ष पहनाया ना, मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लग गया। मतलब मैं इतना कहूँगी कि जो मैं संभाल नहीं पा रही थी खुद को, मेरे को चक्कर आ रहा था, वो मैं संभाल पाई खुद को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के रुद्राक्ष में, गुरुजी के लॉकेट स्वरूप में अपरंपार ताकत है संगत जी। शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, गलती ये हो गई कि मैंने लेट में पहना तो जितना एनर्जी का असर होना था बॉडी पे वो हो चुका था। फिर भी जितने भी सत्संग आ रहे थे संगत जी, मेरे फादर से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड अंकल से फैमिली से रिलेटेड तो आ ही रहे थे, और सबसे ज़्यादा वो मेरे से रिलेटेड, मेरी हेल्थ से रिलेटेड ही आ रहे थे। रिपीटेड गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे, तो संगत जी बार बार सुनवा रहे थे। और गुरुजी ने ये भी बताया सत्संग के माध्यम से कि जो भी मेरी हालत हो रही है, एक संगत के साथ भी सेम ऐसे ही था, तो उन्होंने बताया कि ये ब्रेन हैमरेज के सिम्टम है। अब संगत जी मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने सत्संग सुना, मैंने कहा गुरुजी आपके हाथों मेरी ज़िंदगी है। फिर संगत जी मुझे एकदम से लगा मेरे को उल्टी हो जाएगी, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि मेरे जल प्रसाद में नींबू डाल के पी।
संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने बोला कि आप थोड़ा, मैं लेट में भी अमृत वेला कर लूँगी, मैं सत्संग कंप्लीट सुन लूँ, तब तक आप अमृत वेला कर लो। हस्बैंड अंकल अमृत वेला किया। फिर मैंने कहा कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो आप एक काम कर लो, आप मुझे जल प्रसाद में नींबू डाल के पानी, नींबू निचोड़ के दे दो, मैं पी लूँ। तो उन्होंने दिया। संगत जी, सच में गुरुजी ने टेलीपैथी करा था कि ये इससे पी, और उसको पीने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिलने लग गया। फिर हस्बैंड अंकल सो गए संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, मैं उठी और मुझे गुरुजी ने बोला था कि पूरे घर में अमृत वेला के समय पीली सरसों डाल देना, और जब सूर्य उदय हो जाए तो उसे झाड़ू लगा देना। तो संगत जी, मैं उठी, मैंने पूरे घर में पीली सरसों डाली। मतलब मुझे इतनी एनर्जी आ गई वो जल प्रसाद में नींबू पीने के बाद। उसके बाद मैंने पीली सरसों डाली। फिर मैंने जब वापस से सत्संग सुनने लग गई, तब भी मैं ठीक थी। और धीरे धीरे जब मुझे सूर्योदय हुआ तो मैंने पूरे घर की सफाई की। जो भी पीली सरसों थी वो मैंने उठा के फेंक दी। गुरुजी से अरदास की, गुरुजी महाराज, इस पीली सरसों के रूप में जो भी नेगेटिविटीज़ घर में मौजूद है सब चली जाए, और गुरुजी की कृपा से वो सारी एनर्जीज घर से बाहर चली गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने नमक डाल के पोछा लगवाया, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, घर को वापस से पॉजिटिव कर दिया। अब संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से, मैंने मॉर्निंग में अपने लिए चाय बनाई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को उठने के लिए बोला, क्योंकि मेरी वजह से उनकी भी नींद सही से पूरी नहीं हुई, तो उन्हें घर के बाहर जाना होता है, पूरा दिन काम करना होता है। मैं तो चलो घर में ही रहती हूँ। तो संगत जी, फिर मैंने हस्बैंड अंकल को, उनको थोड़ा लेट में उठाया। जब मैंने उठाया तो मैंने उनको पूरी कुछ बातें बताई कि आज मुझे ये लोग देख के काफ़ी हैरान थे कि मैं ठीक ठाक कैसे हूँ, मतलब मुझ पे ब्लैक मैजिक का असर नहीं हुआ। इन्हें नहीं पता जबकि रात को कितना असर हुआ। और मेरे को थोड़ा सा बहुत नाराज़गी आ रही थी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि आज जो मेरे फादर की हालत है, जो वो थोड़ा बीमार पड़े हैं, उसमें मेरे इन लॉस का हाथ है। मायके वाले तो ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, लेकिन इस बार जो हालत इतनी बिगड़ी है तो इसमें इन लॉस का हाथ है। तभी मुझे सत्संग के माध्यम से पता लगा। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोलने लगी, मैं रोने लगी। मतलब मेरे को एक तरीके से मुझसे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की निंदा चुगली हो गई कि मेरे फादर को नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरे इन लॉस। तो मतलब इस टॉपिक पे काफ़ी निंदा हो गई। अब संगत जी, निंदा होने के बाद क्या हुआ, जितना रात को गुरुजी ने सुरक्षा कवच मेरा बांधा था और मैं ठीक होने लग गई थी, लॉकेट पहनने के बाद, रुद्राक्ष पहनने के बाद, चाय प्रसाद पीने के बाद, या सत्संग शेयर करने के बाद, या नींबू पानी जल प्रसाद पीने के बाद, जो भी है सब मैं ठीक हो गई थी। वो मेरा वापस पलट गया संगत जी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। फिर मैं जब फ्रेश होने गई तो मेरे पेट में अजीब सी ऐंठन, फिर मुझे उल्टियाँ हुई संगत जी, मेरा पित्त घूम गया। संगत जी, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा चुगली बहुत बुरी चीज़ है। एक्चुअली में मैं बस उनको अपना फ्रस्ट्रेशन, मतलब मेरे अंदर का दुख निकल रहा था, पर शायद वो निंदा चुगली थी, मुझे नहीं पता था। सॉरी गुरुजी, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मुझे जितनी भी मुझसे आज गलतियाँ हुई उन सभी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे को काफ़ी, मतलब ऐसा दिक्कत हुआ। फिर मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, मुझे लगता है मुझे मंदिर जाना पड़ेगा और मेरे को तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। फिर संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की। मैं कहा, गुरुजी मुझे मुझे ठीक करो, मेरी रक्षा करो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है गुरुजी, मेरी रक्षा करो। मॉर्निंग में भी संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद पिलवाया था, उन सब के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से और इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक संगत जी मेरे इन लॉस कर रहे थे कि मुझे स्मेल ब्लैक मैजिक की, जो भी वो लोग सामान बनाते हैं ब्लैक मैजिक को, मेरे फ्लोर तक आ रही थी और मेरा दम घुट रहा था। मुझे मेरी तबीयत बिगड़ना ज़्यादा चालू हो गई संगत जी। फिर भी संगत जी, गुरुजी ने कृपा से, जब तक मैं ठीक थी गुरुजी ने मेरा घर का सारा काम करवा दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था ये होने वाला है। उसके बाद संगत जी उल्टी हुई, सब कुछ हुआ। मैंने कहा, हस्बैंड अंकल को बोला मैं नहा लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अभी अगर मैंने अभी नहा के हम लोग मंदिर गए और गुरुजी ने जो उपाय बताए वो किए, तो शाम में जो मेरे इन लॉज शाम के समय भी टोना टोटका जलाते हैं, तो उस वक्त फिर से जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने क्योंकि संगत जी कल गुरुजी ने मुझे 2 बार मंदिर भेजा था। मॉर्निंग में जब इन्होंने टोना टोटका किया था तब भेजा था, और दोपहर में, शाम में फिर जब इन्होंने किया था फिर भेजा था। तो मुझे लगा गुरुजी ने फिर से भेजा, तो फिर क्या करूँगी। तो अभी आप दुकान भी आपकी है तो हम लोग नहीं जा सकते, तो सीधे शाम में चलते हैं। क्योंकि संगत जी फिर धीरे धीरे जब मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी ने मुझसे वापस से मेहर की मेरे ऊपर। तो संगत जी सत्संग भी शेयर करवाया। फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत वापस से ठीक होने लग गई। तो शुक्राना गुरुजी इस चीज़ का भी।
उसके बाद संगत जी हस्बैंड अंकल अपने काम पे चले गए। कोई मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि मैं नहा पाई संगत जी। मैंने पानी में नमक डाल के नहाया संगत जी, कि मंदिर मैं नहीं छू सकती थी, मैंने नहाया नहीं था तो मैं जल प्रसाद ले लेती। कहते हैं संगत जी नमक के पानी से नहाने से आपकी नेगेटिविटी तो रिमूव होती है, आपका ऑरा भी लॉक हो जाता है, पॉजिटिव ऑरा जो लोग छीनना चाहते हैं आपसे। मैंने नहाया संगत जी, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। मैंने सारा काम किया जो मेरा था, मतलब जो भी था घर का थोड़ा बहुत। उसके बाद संगत जी मैंने पूजा करी। जब मैं पूजा करने जा रही थी संगत जी, तो मेरी इन-लॉज़, मेरी मदर इन लॉ फिर वापस मेरे फ्लोर पे आई आज, और ये देखने कि ये ठीक-ठाक कैसे है। और इन्हें तो नहीं पता कि रात को मैंने कितना झेला। इन लोग के सामने तो मैं ऐसे ही दिखा रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे गुरुजी हैं। संगत जी इन्होंने मेरे फ्लोर पे फिर पता नहीं क्या डाल के गईं। जब ये चली गईं तो मैंने हर जगह गुरुजी का जल प्रसाद डाला। गुरुजी का चंदन टीका, हनुमान जी का चंदन टीका मिक्स करके मैंने वो जल प्रसाद पूरे घर में डाला, और हनुमान जी गुरुजी से अरदास की जो भी एनर्जी छोड़ के गई इसे आप ख़त्म कर दो, वापस भेज दो, यहाँ से हटा दो। गुरुजी ने उसे फिनिश कर दिया संगत जी, मुझे आभास हुआ इस चीज़ का। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने वो जल प्रसाद पिया भी। शुक्राना गुरुजी, मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला। उसके बाद हस्बैंड अंकल आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर गए थे, तो हनुमान जी का प्रसाद लेके आए, उन्होंने मुझे वो खिलाया, मुझे और रिलीफ़ मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनवाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा था कि मेरे स्वरूप के सामने दाल चावल बैठ के उसमें नींबू डाल के खाना, मैं तेरे कष्टों को काटूँगा। संगत जी मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी, तो वो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे दाल चावल रखा। गुरुजी से कहा गुरुजी ब्लेस कर दो, भोग लगा दो। फिर उसके बाद नींबू डाल के उसको मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खाया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वो खिला के मेरा कौन-सा कष्ट काटा आप ही जानते हो, और मेरे सभी कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी, वो भोजन करा के मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे वापस से मैसेज दिया कि 2 इलायची शिव जी के पास रख और 7 बार मंत्र जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान करके खा ले। मैं तेरे ऊपर टोने टोटके को भी काट दूँगा। संगत जी मैंने वो भी कर लिया, तो गुरुजी ने मेरे टोने टोटका भी काट दिया। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बिल्कुल बेटर महसूस कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कोशिश करूँगी संगत जी शाम में मंदिर जाऊँ, गुरुजी महाराज के कहे उपाय करूँ, ताकि राधि मेरी बहुत अच्छे से निकले। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था आज का। आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, मेरी हेल्थ अच्छी की, मेरे मन को शांत किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और हस्बैंड अंकल पे जो भी कष्ट था वो गुरुजी ने तो समाप्त कर ही दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।